Hello, my dear children. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing SST Class 7. And here the name of your book is Time Travelers, Unraveling History's Mysteries. So children, today we are back again with chapter number 4 of Geography. And the name of the chapter is The Atmosphere. So let's start with the chapter, and before that let's do this exercise. You have to label the pie chart showing composition of air along with percentage. So air में कौन सा part है और उस part में का कितना composition है, that you have to write here. So this is nitrogen, oxygen and so on. So you have to write the rest. Now the Earth's atmosphere extends more than 1,000 kilometers above the Earth's surface. So Earth के surface के से काफी 1,000 kilometers तक ये atmosphere exist करता है. The blanket is of air that surrounds the Earth is known as the atmosphere. So अर्थ का जो ब्लैंकेट है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. द एयर इज एन इम्पोर्टेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन प्लैनेट अर्थ. और ये जो एयर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम है प्लैनेट अर्थ का. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर? द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट इंटेंसिव हीट और कोल्ड. ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है जब बहुत ज्यादा हीट हो या फिर कोल्ड. thereby moderating temperature on earth. और अर्थ पे जो टेम्परेचर है उसे मॉडरेट करता है. ना ज्यादा हॉट होता है टेम्परेचर, ना ही ज्यादा कोल्ड. टेम्परेचर्स ऑन अर्थ. अब अर्थ पे क्या क्या टेम्परेचर होता है? It contains carbon dioxide which is used in the process of photosynthesis by the plants to produce their own food. So अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है ताकि प्लांट्स अपना फूड बना सकते फोटोसिंथेसिस से. The atmosphere contains oxygen and nitrogen which are essential for life on earth. So लाइफ के लिए, लाइफ अगर आप अर्थ पे चाहते हो तो उसके लिए जो ये गैसेस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट कंटेन्स वाटर वेपर्स व्हिच कॉजेस प्रेसिपिटेशन एंड इन्फ्लुएंस वेरियस वेदर एक्टिविटीज ऑन अर्थ. सो ये चीजें जो है प्रेसिपिटेशन को कॉज करती है जिससे जो है वेदर एक्टिविटीज क्या वेदर एक्टिविटीज है तो हमें पता चलता है. The ozone layer absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun and protect the biosphere from their harmful influence. ये जो ओजोन लेयर है सन के यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है. Composition of the atmosphere. Air which makes up the atmosphere is a mixture of several gases. So ये जो एयर है जो एटमॉस्फेयर को बनाता है इसमें बहुत सारे गैसेस हैं. नाइट्रोजन मेक्स अप टू 78% नाइट्रोजन है. 21% जो है ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड इज released into the air through respiration of animals, burning of fossil fuels, and from decaying remains of plants and animals. So carbon dioxide इन सब से produce होता है. Several other gases form the remaining part of air. जो बाकी दूसरी gases हैं वो इनके बाकी parts में को form out करते हैं. The clouds bring various form of precipitation on the earth. जो clouds हैं different forms जो precipitation के उसे form करते हैं. Undesirable elements such as soot, smoke, fluorocarbons etc. are also present in the air. Air में ये सारी चीजें भी present होती हैं. These elements are released into atmosphere due to the human activities. Pollen and dust carried by wind also reduce the quality of air. So ये जो भी activities हैं of smoke और different things जो यहाँ पे लिखे हुए हैं
ह्यूमंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज। और जो पॉलन और जो डस्ट कैरी होता है एयर में, ये भी पोल्यूशन को बढ़ाता है और एयर की क्वालिटी को डिक्रीज करता है। Now let's learn the layers of the atmosphere. So atmosphere के कौन कौन से layers हैं? The atmosphere is divided into various layers. Let us study more about each layer. The first is the troposphere. This is the lowest layer of the atmosphere and varies in thickness from the equator to the poles. Also, the air which is close to the ground is denser and gets thinner with increasing altitude. So, कई बार जो है ये जो एयर है वो ग्राउंड के पास जो एयर है वो डेंस रहती है, थिन हो जाती है, जिससे जैसे जैसे altitude increase होने लगता है. The temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meters of ascent. So जैसे जैसे हम जो है इन लेयर्स में जाते हैं तो टेम्परेचर जो गिरता चला जाता है 1 डिग्री तक. हर लेयर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है गिरता चला जाता है 165 मीटर्स तक. दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट और इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है. ट्रोपोस्फियर मेंटेन्स टेम्परेचर कंडीशन ऑन द अर्थ एंड आल्सो कंटेन्स इंपॉर्टेंट लाइफ सस्टेनिंग गैसेस. सो जो ट्रोपोस्फियर है ये जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और इसमें लाइफ सस्टेनिंग गैसेस भी इंक्लूडेड जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. All kinds of weather activities occur within the troposphere. जितने भी तरीके की weather activities है वो troposphere में ही होती हैं. It has an average height of 16 kilometer above the equator. So equator से 16 kilometer above इनकी height है and 8 kilometer above the poles. और poles से 8 kilometer का इनका difference है. The second layer is the stratosphere. This layer lies just above the troposphere. ये troposphere से just ऊपर है and it extends up to the height of 50 kilometers. It is cloud-free zone and is mostly suitable for jet planes and travel objects as at great speed. So ये जो एरिया है वो cloud-free zone है. यहाँ पे clouds आपको नहीं मिलेंगे तो आराम से जो jet planes हैं या जो travel aeroplanes हैं कुछ भी ये सब चीजें यहाँ पे fly करते हैं. The ozone layer found here absorbs the harmful UV rays of the sun. यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो UV rays को absorb करता है. In this layer temperature begins to increase with altitude. और इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो altitude के साथ बढ़ने लग जाता है. The next is mesosphere. This layer extends to the height of 80 kilometers above the earth. अब ये जो लेयर है वो अर्थ की सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर है. Your temperature decreases with the increase in height. तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है. This is the coldest layer with temperature below -143 degree. ये जो है सबसे ठंडा लेयर है जहाँ पे टेम्परेचर -143 डिग्री है. Meteoroids have entered the Earth atmosphere from outer space, burn up in this layer. So, जो मेटेरॉइड्स जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर से निकलते हैं, आते हैं स्पेस में से, वो यहाँ पे आके जो है वो बर्न होने लगते हैं. थर्मोस्फियर. दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर. सो ये जो लेयर है 400 किलोमीटर तक ऊंचा है. दिस लेयर कंटेन्स आयंस विच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स टू द अर्थ. ये जो लेयर है इसमें आयंस हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को जो अर्थ तक जाती हैं. मेकिंग वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल. जिससे जो है वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है. It in the upper layer of this layer brightly colored lights known as aurora borealis are produced. So इस लेयर में aurora borealis कुछ ब्राइट कलर लाइट्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं. And this layer is also known as ionosphere and is characterized by the rapid rise in temperature with increasing altitude. So जैसे जैसे altitude increase होता है temperature जो rise करने लगता है.
Next is the exosphere. This layer extends to the height of about 1600 km and merge into outer space. ये जो exosphere है 1500 किलोमीटर 1600 किलोमीटर ऊंचा है और ये स्पेस तक मर्ज हो जाता है. Ultraviolet rays fill this layer and faintly glow called zodiacal lights. So ये जो UV rays है इस लेयर में बहुत ज्यादा होती हैं जिन्हें zodiacal lights भी कहा जाता है, which occur due to sunlight reflect from particles of meteorite dust originate in this layer. So ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं. The thin air in this layer contains helium and hydrogen. So इस layer में जो air है उसमें helium और hydrogen होता है. Now let's learn about the weather and climate. Weather refers to the condition of the air around us in a small area which is subject to change in short period of time. So weather जो है condition बताता है, air condition को बताता है जो हमारे आसपास है किसी भी एक small area में जो थोड़े टाइम पे change होता रहता है. While climate refers to weather condition, लेकिन जो climate होता है weather conditions को बताता है कैसे वो prevail हो रहे हैं एक long period of time. Unlike weather, climate does not change. Weather की तरह climate change नहीं होता है. In case there are some changes, they occur over a long period of time. कई बार जब ये change होता है तो ये काफी लंबे समय तक चलता रहता है. In the morning, the weather conditions may be cool with a slight breeze, but by afternoon. So morning में जो weather condition है वो ठंडा होने लगता है जिसमें जो है slight जो है आफ्टरनून में एक हल्की हल्की हवा चलने लगती है. द वेदर चेंजेस एंड इट बिकम्स हॉट. और हवा जो है जो वेदर जो चेंज हो गया है और वो हॉट हो जाता है. इन द इवनिंग देयर मे बी थंडरस्टॉर्म विद सम रेनफॉल. इवनिंग में थंडरस्टॉर्म हो जाता है, हल्की हल्की बारिश हो जाती है. द नेक्स्ट डे देयर मे बी अ थंडरस्टॉर्म. और अगले दिन फिर से थंडरस्टॉर्म मे नॉट बी अ थंडरस्टॉर्म. अगले दिन बारिश नहीं हो सकती, थंडरस्टॉर्म नहीं हो सकता. Thus we see that weather changes from time to time every day and is not fixed. तो हम क्या देखा हमने कि weather जो change होता रहता है और एक तरीके जो है fix नहीं. But these changes are confined only to a local area. लेकिन ये जो changes हैं वो एक ही area तक confined है. Only on the other hand, climate is the overall condition of the weather. लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो climate है weather का वो ओवरऑल कंडीशन पे डिपेंड करता है. क्लाइमेट से डिपेंड करता है ओवरऑल वेदर कंडीशन पे. द एवरेज ऑफ विच इज टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट डज नॉट चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड कवर्स अ लार्ज एरिया. ये जो है डे टू डे चेंज नहीं होता है और एक लार्ज एरिया को कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. इंडिया में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है विच मीन्स इट हैज अ हॉट climate and is influenced by the monsoon wind. So ऐसा कहा जाता है कि ये hot climate है और ये hot monsoon wind से influenced है. Elements of weather. We will discuss here about some elements of the weather. The first is the air pressure. Air pressure is measured by an instrument called barometer. Air pressure को barometer से हम measure कर सकते हैं. Air has weight which presses down the earth. एयर के अंदर वेट होता है जो अर्थ को प्रेस डाउन करता है. The weight exerted by a column of air in the surface is called as air pressure. और इसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं. Air pressure decreases with increasing altitude. जैसे जैसे altitude हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर का प्रेशर कम होने लगता है. It is higher at sea level and gets lower with increase in altitude. ये sea level पे higher होता है, ज़्यादा होता है और जैसे altitude increase होती है ये कम होने लगता है. At sea level, air pressure is nearly 1.05 kilogram centimeter square. What is simple mercury barometer? It comprises of a tube with one end open and placed in the mercury. So ये जो एक ट्यूब है जिसका एक एंड जो खुला हुआ है
और इसके अंदर मर्क्यूरी है। As air has weight, it exerts pressure on the mercury. जैसे कि आपको पता है कि एयर के अंदर वेट है, तो ये जो मर्क्यूरी पे प्रेशर लगाती है। एंड इट मेक्स द मर्क्यूरी राइज इन द ट्यूब, और जिसकी वजह से मर्क्यूरी जो ट्यूब में ऊपर उठने लगता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 760 मिलीमीटर और 30 इंचेस ऑफ मर्क्यूरी। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे वो इतना है। व्हेन एक्सप्रेस इन मिलीबार्स इट इज 1013 मिलीबार्स। इफ द मर्क्यूरी राइजेस अबव दिस पॉइंट, अगर मर्क्यूरी इस पॉइंट से ऊपर राइज करता है, वी से दैट द एयर प्रेशर इज हाई। हम कह सकते हैं कि इस समय जो एयर का जो प्रेशर है वो हाई है। बट व्हेन इट फॉल्स बिलो दिस पॉइंट द प्रेशर इज सेड टू बी लो। लेकिन जब वो इस पॉइंट के नीचे रहता है मर्क्यूरी का प्रेशर, तो ऐसा कहा जाता है जो प्रेशर है वो लो है। Now here you can see the picture of mercury barometer. Now let's learn about the aneroid barometer. It is made of a thin metal drum from which air has been removed. So ये जो है एक thin metal drum से बनता है जिसमें जो है एयर जो है नहीं होता है। The pressure of the outside air pushes the lid of the drum inwards. और इस केस में जो बाहर का जो एयर होता है वो लिड को पुश करता है in upwards. The higher the air pressure, the more the lid is pressed. जितना ज्यादा एयर प्रेशर होगा उतना ज्यादा ये लिड ऊपर की तरफ प्रेस होता है। In an aneroid barometer, the pressure of the lid is shown by a needle on a dial. So कितना प्रेशर है इस बैरोमीटर पे ये नीडल बताता है डायल में जो होता है। Changes in air pressure affect the weather. So air pressure में जो भी changes हैं उससे जो है weather affect हो जाता है। A rapid drop in atmospheric pressure marks the arrival of low pressure system. So जब ये atmospheric pressure जो है change होता है, drop करता है, तो low pressure जो है शुरू हो जाता है। Low pressure systems are associated with cloudy, rainy and windy weather. So जो low pressure system है वो cloudy, rainy और windy weather से associated है। A rapid increase in atmospheric pressure pushes that cloudy and rainy weather out. So जब atmospheric pressure जो है increase होता है तो इसकी वजह से जो cloudy और rainy weather है वो बाहर आ जाता है, clearing the skies and bringing in cool dry air, जिससे जो sky clear हो जाती हैं और जो ठंडी air है, dry air है वो बाहर आ जाती है। China produce most of the wind energy in the world. So China ने wind energy का सबसे ज़्यादा production किया है। The US closely follows the second largest wind energy producer. और US जो है second largest energy producer, wind energy producer. Now let's learn about the winds. Winds are the horizontal movements of air caused by temperature change. So ये जो winds हैं ये horizontal movement है जो air का इसको cause करते हैं जिससे temperature change होता है, which in turn causes change in air pressure, जिसकी वजह से air pressure होता है। Air pressure increases when temperature as low and decreases when temperature are high. So जब temperature low होता है तो air pressure increase हो जाता है और जब temperature high होता है तो ये decrease हो जाता है। Winds blow from regions of low temperature. ये जो winds हैं वो low temperature वाली जगहों से blow करते हैं and high pressure towards region of high temperature. और high pressure में blow करते हैं जहाँ पे temperature high होता है। And low pressure. Coastal regions enjoy cool sea breeze as air blows toward the hot land during the day. So ये जो coastal area है यहाँ पे आप देख सकते हो जो land है बहुत ज़्यादा hot होता है। So जो sea breeze जो होती है वो land की तरफ जाती है दिन में and at night the cooler land breeze blow towards the sea. और रात में जो land की जो cool breeze होती है वो sea की तरफ जाती है। There are similar airflow patterns along lake sides. और lake के side में भी ऐसा ही जो है pattern है airflow का।
While studying the weather, it is necessary to learn about the direction and the speed of the wind. So जब हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं तो ये जरूरी है कि हम डायरेक्शन और स्पीड जो है पढ़ सकें विंड का. A wind is described or named after the direction from which it comes. ये जो wind है उसे describe किया गया है या फिर नेम किया गया है आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स. जिस डायरेक्शन से आता है वहां उस तरीके से इसका नेम दिया गया है. अ साउथ विंड ब्लोज फ्रॉम द साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ. साउथ विंड जो है साउथ से चलती है नॉर्थ की तरफ. ईस्ट विंड ब्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट विंड जो है ईस्ट से चलती वेस्ट की तरफ जाती है. विंड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन. सो विंड वेन वो इंस्ट्रूमेंट है जो विंड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है. Wind speed is measured with an anemometer. So anemometer से हम जो है wind की speed को determine कर सकते हैं. Strong winds do not blow continuously with the same degree of intensity, and after a while they become gentle before regaining force once again. So ये जो strong wind है ये एक ही डिग्री से constantly नहीं बढ़ते हैं और ये धीरे धीरे जाके जेंटल विंड में कन्वर्ट हो जाते हैं. Sometimes when the wind blow, it forms whirls of dust and eddies. So कई बार जब विंड ब्लो करता है तो उसके अपने साथ बहुत सारे डस्ट को अपने साथ ले चलता है. It especially takes place in area where there are tall buildings. और ऐसा ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे लंबी लंबी बिल्डिंग्स है. While the eddies lie in the direction of the wind becomes strong. और जैसे ये एडीज जो है विंड के डायरेक्शन में आते हैं विंड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. विंड्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरी. विंड को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट इज द परमानेंट विंड. दीज विंड्स ब्लो ऑल ईयर राउंड इन फिक्स्ड डायरेक्शन. ये जो विंड है वो एक ही डायरेक्शन में पूरे साल चलते हैं. ट्रेड विंड्स दैट कम फ्रॉम द ईस्ट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन. जो ट्रेड विंड है वो ईस्ट से आते हैं और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन तक जाते हैं जो इक्वेटर तक है टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन. और ये इक्वेटर के जो लो प्रेशर जोन है वहां तक जाते हैं. वेस्टर्ली विंड्स दैट कम फ्रॉम वेस्ट ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन ऑफ सब पोलर लोअर प्रेशर जोन. अब जो वेस्टर्ली विंड है वो सब ट्रॉपिकल जो प्रेशर जोन है वहां से सब पोलर लो प्रेशर जोन तक जाते हैं. पोलर विंड्स कम फ्रॉम द ईस्ट ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर जोन टू द सब पोलर लो प्रेशर जोन. सो ये जो पोलर विंड है वो ईस्ट से ब्लो करते हैं और लो प्रेशर जोन जो वेस्ट में है वहां तक वो जाते हैं. Here you can see the planetary winds of the earth. अर्थ में विंड जो है कैसे जो है हाई प्रेशर या लो प्रेशर एरियाज में जाते हैं. सीजनल विंड्स अनलाइक परमानेंट विंड दे ब्लो ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन. सो सीजनल विंड जो है किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्लो करते हैं. देयरफॉर आर कॉल्ड पीरियोडिक विंड्स और इन्हें पीरियोडिक विंड्स भी कहा जाता है. द मॉनसून विंड्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ सच विंड. और जो मॉनसून विंड है वो इनका एक गुड एग्जांपल है. द नेक्स्ट इज द लोकल विंड. दीज विंड्स आर कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया एंड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ देयर ओन. ये जो विंड्स हैं ये स्मॉल एरिया तक ही लोकेटेड हैं और इनके कुछ खुद के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हैं. एन एग्जांपल ऑफ लोकल विंड इज द लू व्हिच इज अ हॉट dry and dusty wind that blows during the hot dry season in the northern plains of India. So इस लोकल विंड का एक एग्जांपल है लू जो गर्मियों के सीजन में चलता है जो बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है डस्टी होता है डस्ट से भरा हुआ होता है और ड्यूरिंग द हॉट ड्राई सीजन ये नॉर्दर्न प्लेन्स में चलता है. नेक्स्ट इज साइक्लोनिक विंड. दीज विंड अकर व्हेन कोल्ड एयर मीट्स वार्म एयर. सो ये जो विंड है ये तब आते हैं जब ठंडी हवा जो गर्म हवा से मिल जाती है. देयर अकरेंस वेरीज विद टाइम एंड प्लेस. और इनका जो अकरेंस है वो टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होता रहता है. साइक्लोन्स क्रिएट चाउस एंड डिवास्टेटिंग मूवमेंट्स एट द रेट अप टू 74 माइल्स पर आवर. ये जो साइक्लोनिक चाउस हैं ये डिवास्टेशन
एंड डिवास्टेशन जो है ये जो है मूव करते हैं 74 माइल पर आवर के अकॉर्डिंग. द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन डिपेंड्स ऑन द रीजन इन विच दे अकर. सो कौन से एरिया में है वो डिपेंड करता है. एंड इन द ईस्टर्न पैसिफिक दे आर कॉल्ड हरिकेन्स, और इन्हें ईस्टर्न पैसिफिक में हरिकेन्स भी कहा जाता है. दोज इन सदर्न ईस्टर्न पार्ट आर कॉल्ड टाइफून, और जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट में है उन्हें टाइफून कहा जाता है. एंड दोज इन द इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन्स आर कॉल्ड साइक्लोन, और इन जगहों पे साइक्लोन कहा जाता है. हियर यू कैन सी द एरियल व्यू ऑफ साइक्लोन. साइक्लोन जब आता है तो उसका एरियल व्यू दिख रहा है, स्पेस से कैसा दिखता है वो, दैट वी कैन सी हियर. द नेक्स्ट part that we are going to learn is temperature. Temperature is measured by the thermometer. Thermometer से हम temperature को measure कर सकते हैं. The simplest thermometer is the mercury in glass और rod thermometer. So सबसे simple thermometer ये है. When it heats up, the mercury in the bulb at the bottom of the thermometer expands and rises in the thin vacuum glass. So जैसे जो है hot हीट पाता है ये mercury, तो ये ऊपर की तरफ राइज करता है और वैक्यूम ग्लास में जो है स्प्रेड आउट होने लगता है. विद इन द ग्लास रॉड व्हेन इट कूल्स द mercury contracts and drops down in the tube. और जब ये mercury जो है ठंडा होने लगता है तो ये ट्यूब में ड्रॉप डाउन होने लगता है. thereby depicting both maximum and minimum temperature of the day. जो ये जो है मैक्सिमम और मिनिमम जो भी टेम्परेचर होता है डे का उसे डिपेक्ट करते हैं. द रिकॉर्डिंग थर्मोमीटर एक्चुअली ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स ऑल टेम्परेचर चेंज. जो रिकॉर्डिंग थर्मोमीटर है जो भी टेम्परेचर चेंज है उसे रिकॉर्ड करता रहता है. द एयर टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस डिनोट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ एयर एट दैट प्लेस. जो एयर का जो टेम्परेचर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का वो डिनोट करता है कितना डिग्री हॉट है या कोल्ड है कोई प्लेस. इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. ये सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय द सन्स रेज. जो सन का जो सरफेस है वो जो सरफेस है अर्थ का वो सन के रेज से हीट अप हो जाता है. एंड द एयर अबव द अर्थ सरफेस इज हीटेड बाय द हीट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वार्म सरफेस. और जो एयर है वो इस वार्म अर्थ के जो वार्म सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट होके गर्म हो जाती है. इन समर्स द सन इज हाई इन द स्काई, therefore the amount of heat that reaches the earth surface is higher. So समर सीजन में क्या होता है जो सन का जो है डायरेक्ट लाइट आता है अर्थ पे जिससे जो है जो समर से बहुत ज्यादा हॉट होते हैं. इन विंटर्स द सन इज लो इन द स्काई एंड द रेज slant towards the surface of the earth. लेकिन जब विंटर्स आते हैं तो जो सन की रेज है वो स्लैंटिंग पड़ती हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो जिसकी वजह से वहाँ पे कम हॉट होता है एटमॉस्फेयर. फॉर दीज रीजन समर्स इज ऑलवेज वार्मर दैन विंटर. इसलिए जो समर होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं. सिमिलरली द सन रीचेज इट्स हायर पोजीशन ऑन जेनिथ इन द स्काई एट मिड. सो इसी तरीके से सन जो है अपने एकदम जो प्रॉपर हाईएस्ट पोजीशन होता है वहां पे वो मिड डे में मींस 12 बजे दोपहर में पहुंचता है. एज मोर ऑफ द सन्स हीट रीचेज द अर्थ सरफेस. जैसे सन की हीट जो है अर्थ के सरफेस पे जितनी ज्यादा पहुंचती है एट मिड डे दैट एट देन एट एनी अदर टाइम. सो जो ये दोपहर का टाइम होता है इसमें सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी अर्थ पे पहुंचती है. The temperatures are lowest just before dawn. और जो टेम्परेचर होता है इस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा कम होता है. This is because the surface of the earth cools rapidly after the sun has set. और ये तभी होता है जब जो है the surface of the earth cool rapidly. और इसी की वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो जल्दी ठंडा हो जाता है जैसे ही सन जो है सेट होता है. टेम्परेचर फॉल्स स्टेडली बिलो बिटवीन सनसेट एंड डॉन. और जो टेम्परेचर है वो सनसेट और डॉन के बीच में बहुत जल्दी ही गिरता है. नेक्स्ट इज द सैचुरेशन पॉइंट. एयर कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर.
एयर जो है सिर्फ थोड़ा बहुत ही वाटर वेपर को जो है होल्ड कर सकता है। When the air reaches its full capacity of holding water vapor, it is said to be saturated. और जब ये एयर जो है रीच करती है अपनी फुल कैपेसिटी पे वाटर वेपर को होल्ड करने की, इसे कहा जाता है सैचुरेटेड. As the temperature of the saturated air falls, the water in it condenses to form droplets of water which flow in the air. जैसे ही टेम्परेचर जो है गिरने लग जाता है, सैचुरेट होने लगता है, एयर गिरने लग जाता है, तो जो भी वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है और ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और वो हवा में फ्लोट करने लगते हैं. मिलियंस ऑफ सच ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म क्लाउड्स, और ये बहुत सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं आपस में मिलके क्लाउड्स बन जाते हैं. विच आर केप्ट फ्रॉम फॉलिंग बाय एयर करंट, और ये एयर करंट से फॉल होने लगते हैं. क्लाउड्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड हाइट. क्लाउड्स जो है वो अपने शेप और हाइट के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है. सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर स्ट्रैटस, साइरस एंड क्यूमुलस. सो कुछ क्लाउड्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे. ऑल्टीट्यूड अफेक्ट द शेप ऑफ क्लाउड. सो कैसा शेप होगा क्लाउड का, ये डिपेंड करता है ऑल्टीट्यूड पे. As air rises, it cools and clouds are formed. But when the air descends from a greater height, it gets warmer and the cloud disappears. So जैसे ही air जो है rise करती है, वो cool करती है clouds, और उससे जो है clouds बनते हैं. लेकिन जैसे air जो है नीचे आती है, बहुत तेज height से वो गर्म हो जाती है और clouds जो है disappear हो जाते हैं. What is precipitation? Precipitation is any form of water in solid or liquid state that falls on the earth surface. So earth के surface पे किसी भी तरीके का पानी गिरना, चाहे वो solid form में हो liquid form में, उसे precipitation कहते हैं. Precipitation can take several forms. Precipitation के बहुत सारे forms हो सकते हैं. तो पहला है rainfall, occurs when droplets present in the clouds. Rainfall का वक्त occur होता है जब droplets जो होते हैं cloud में become too heavy to remain suspended in the air. जब ये बहुत ज़्यादा heavy हो जाते हैं और एयर में टिक नहीं पाते हैं, and fall to the surface, और ये ज़मीन पे गिर जाते हैं. When warm moist air cools, जब warm और moist air होता है, जब वो ठंडा होता है, it condenses to form thick clouds. ये condense होते हैं और thick clouds बन जाते हैं, which bring rainfall in the form of large drops of water, जिससे बड़े drops जो है water के बनते हैं. When the drops are small, it is called drizzle. जब ये drops जो है एकदम छोटे छोटे होते हैं तो उसे drizzle कहा जाता है. Rainfall is measured by an instrument called the rain gauge, और rain gauge ही इस rainfall को measure करता है. In regions where hot air expands to rise up and to high altitude, it forms thick clouds that causes a sudden torrential rainfall called conventional rainfall. So कुछ जगहों पे जो hot air है वो expand करती है, ऊपर जाती है, और high altitude पे, और वो thick clouds जाके वहाँ पे बन जाती है, जिसकी वजह से कुछ rainfall होता है, जैसे torrential rainfall कहा जाता है. When high mountains come in the way of moist wind, जब ये high mountains in moist wind के रास्ते में आते हैं, and force them to rise up their slopes and shed rainfall, तो ये जो है फोर्स करते हैं उन्हें ऊपर उठने में, जिससे जो है इनके स्लोप जो है these rise their slopes, ये अपने स्लोप्स पे चले आते हैं और रेनफॉल के रूप में नीचे आते हैं. This is known as relief of orographic rainfall. So इसे जो है relief या फिर orographic rainfall भी कहा जाता है. When warm and cold air meets, जब ठंडी और गर्म हवा दोनों आपस में मिलते हैं, the lighter air, warm air ascends over the heavier cold air. जो हल्की गर्म हवा है वो heaviest cold air के ऊपर extend हो जाती है, condensing above it and resulting in cyclonic rainfall. और वो उसके ऊपर wrap on हो जाती है, जिससे cyclonic rainfall होता है. Snow is made up of flakes of tiny ice crystals that form a snow cloud. So snow क्या है? छोटे छोटे ice flakes हैं जो snow cloud बन जाते हैं.
Hail is made up of round lumps of ice and occurs only in cumulonimbus clouds. So here you can see the picture of hailstorm, and let's revise what we have learned. The blanket of air that surrounds the earth is called the atmosphere. The different layers of the atmosphere are the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Weather may change after short duration, but climate conditions remain the same for the long period of time. The different types of winds are permanent wind, seasonal wind, local wind and the cyclonic winds. The temperature at which the air gets saturated is called the saturation point. Precipitation in any form of water in solid or liquid state that falls on the earth's surface. The different forms of precipitation are rainfall, snow and hail. Now let's answer these questions. With the help of example, explain the relationship between air temperature and air pressure. So आपको example देना और बताना है air temperature और air pressure में क्या difference है और इनमें क्या relationship है. Explain the various elements of weather. Weather के कौन-कौन से elements है that you have to write here. What are the different types of winds? अलग-अलग कौन-कौन से winds के बारे में आपने पढ़ा that you have to write here. What are different forms of precipitation and explain the main layer of the atmosphere. So children, you have to do these questions on your own, and for doing that you have to read the chapter again. I hope that you have understood the chapter very well, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.